Hello people, welcome to IS Plus channel, right? This is our first video with respect to GS paper 2, right? In this video, we will cover polity, right? We will have total 35 lectures of polity, right? Then we will move to governance, followed by IR and social justice. So let's get started, right? Now, the first topic in today's class is about constitution. What is constitution? In the simplest term, it can be defined as a rule book. It can be defined as a rule book, but according to the standards of answer we have to write in prelims mains, we need to have a standard definition. Thus, we can define constitution as fundamental, fundamental and organic, organic law of land, law of land that establishes the conception, character, and organization of government. Now, in this definition, we have few important terms, right? First term is fundamental. Now, if I ask you what is the meaning of fundamental, it simply means basic. For example, क्लास 8 की एनसीईआरटी में it has been defined that cell is basic unit of life or cell is fundamental unit of life. It simply means cell combine to form tissue. These tissues combine to form organ, then organ system, then individual. We are calling cell as fundamental because the existence of individual is only because of existence of cell. The cell is the basic unit of life. Similarly, this constitution is the fundamental law of land, fundamental law of the land or fundamental law of the country. Means if this constitution ceased to exist, the very existence of the individual will be jeopardized, right? The next important term is organic. Organic means something that grows, right? Something that grows. Here organic means constitution is a document that changes with time, that changes with time. For example, there are certain provisions that were not relevant in 1950s but were relevant in 2000. For example, right to education being a fundamental right was not thought to be of that use in 1950 with compared to 2000, right? मतलब कहना ये चाहता हूँ कि there were certain provision in the constitution or there are certain parameter in the society that will keeps on changing. These parameters will be evolving, and if we want a good constitution, then that constitution must incorporate the changing scenario of the society. I hope you people are not now clear with the two words fundamental and organic. Law of the land simply means the country itself. Now these three important words: conception, character and organization. Conception simply means how government is formed, that is the idea of the government, right? Idea of government. Whereas character means nature, right? Nature. Now nature means whether we have a secular state, right? Whether we have a democratic state, whether we have a republic state or whatsoever, right? The last word in the definition is the organization.
Organization simply means a structure of the government or a structure of the country. Whether we are enjoying a federal system, right, or we have a unitary system. आने वाले क्लासेस में वी विल डिस्कस व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज यूनिटरी, एंड जीएस पेपर 2 के टॉपिक में आपको फेडरलिज्म बहुत अच्छे से पढ़ना है. तो इन द नेक्स्ट क्लास और इन द थर्ड क्लास वी विल डिस्कस फेडरलिज्म, राइट. So we can say that constitution is now a fundamental law of land that determine conception, character and organization of the government. It is organic in nature. Why organic? Because a good constitution need to incorporate the changes in the society. Okay, there is another definition of constitution. Let me clear it first. इसको लिखते चलना कॉपी में, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी पीडीएफ टू दिस, ठीक है ना. तो इसको लिखते चलना, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बट लिख लेना, कॉपी में लिख लोगे तो अच्छा रहेगा ना. Now another definition with respect to constitution is that constitution is supreme law of land, supreme law of land, law of land, where all other existing customs, traditions, laws must be in sync with constitution. sync with constitution. इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है उस कंट्री का, राइट, जहां पे जितने भी कस्टम्स हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं एंड जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से होने चाहिए, राइट. इट सिंपली मीन्स, एग्जाम्पल देख के समझो. Since untouchability is against the provision of the constitution, Indian constitution reject untouchability. Similarly, child marriage एक कस्टम था, सती एक कस्टम थी, राइट. ये दोनों के दोनों कस्टम, एंड द मोर रिसेंटली ट्रिपल तलाक, राइट. All these customs were not in accordance with the provision. That's why constitution declares all those customs, all those traditions and all those laws that are not in accordance with the provision of the constitution as null and void. Null and void, right. Simply means all customs plus all traditions plus all laws must be in accordance with constitution. मेरी थोड़ी सी राइटिंग से आप बियर कर लेना, राइटिंग अगर अच्छी होती तो खैर, राइट. तो इसको आप समझ गए. कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने दो डेफिनेशन बताए. पहला मैंने बताया इट इज द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ लैंड दैट एस्टैब्लिश द कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट. दूसरा मैंने आपको बताया इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड वेयर ऑल अदर कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड लॉज मस्ट बी इन सिंक विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग आ गई होगी, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है. मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं. कॉन्स्टिट्यूशन एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से किसी भी कंट्री के कस्टम्स, किसी भी कंट्री के ट्रेडिशंस, उनके लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से होने चाहिए. नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ सिस्टम. Constitutionalism is a system. It is a system of limited government. Limited government means if we have a system where the government is not absolute, where this government is not absolute, and citizens have right, then this system of government or this system of governance is known as constitutionalism. Now there are certain provisions which ensures constitutionalism, right. These
These features are first, the constitution should be democratically formed, right? Second, there should be separation of power and there should be check and balances. All these doctrine like doctrine of check and balance, doctrine of separation of power को बहुत डिटेल में करेंगे as they are important for your mains examination. The third features of constitutionalism is independence of judiciary. Then we have judicial review. Next we have fundamental rights. Next features that ensures constitutionalism is a strong civil society. A strong civil society followed by responsible मीडिया, राइट? इंडियन मीडिया के जैसा नहीं, मीडिया कैसी होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल मीडिया होनी चाहिए, राइट? चलो थोड़ा सा समझते हैं. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है सर? ये एक सिस्टम है. System of what? System of having a limited government. Limited government means the power of the government is not absolute. Means we need certain check and balance over the power of government. These check and balance can be ensured by various provisions. Like the constitution should be formed democratically. It's not like that a single person ने पूरी की पूरी constitution लिख दी, कोई डिस्कशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के टाइम. ऐसे में क्या होगा? द माइनॉरिटीज विल बी एट द मर्सी ऑफ मेजॉरिटी. सेकेंड प्रोविजन, सेपरेशन ऑफ पावर. जो भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी, all these three will be independent to each other. Then we have independence of judiciary. It means the judiciary should not work under the pressure of either legislature or executive. It's not like that कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो कह दिया वाली बात, right? Second, we have judicial review. Then we have fundamental rights to the citizen. Then we have a strong civil society which lead to a strong democratic opinion. मीन्स सिविल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए और उसकी ओपिनियन ऐसा होना चाहिए कि इट शुड इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट. देन लास्ट वी हैव रिस्पॉन्सिबल मीडिया. तो बच्चों अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि मियरली हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन does not ensure constitutionalism. You need to have these provisions in the constitution if you want to ensure constitutionalism in your country. कहने का ये मतलब है कि हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है. उस लीगल डॉक्यूमेंट में तो कुछ भी लिखा जा सकता है कि इंडिया में एक आदमी की गवर्नमेंट चलेगी, इंडिया में माइनॉरिटी को कोई राइट नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? डॉक्यूमेंट में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आंसर्स तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपका आंसर्स यूपीएससी के मार्क्स के लायक है कि नहीं? योर स्टैंडर्ड योर स्टैंडर्ड ऑफ द आंसर आर नॉट अप टू द मार्क of the mains, ये determine करेगा how much marks you will get. So these provisions of the constitution will determine whether your constitution promises constitutionalism or not. So my dear friends, please don't get confused with respect to constitution and constitutionalism. फिर से रिपीट कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सिस्टम है, राइट? इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत रखना. नाउ we are clear with the concept of constitution and constitutionalism. So let's move forward. There are certain functions of the constitution, right? The first one is it reflects the ideology and philosophy of state. Indian constitution reflects the Indian philosophy, reflects the Indian ideology. Then it validates all other laws. जो मैंने आपको बताया था कि सर अगर कोई कस्टम है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा. मीन्स all other laws
draws inspiration from the provision of constitution. It provides organizational framework, right? Constitution also provides us procedure to amend the constitution. मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया डज नॉट मीन्स कि वो परमानेंट हो गया. इन्वायरमेंट चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ेगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी या फिर जो भी वर्ल्ड के और भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करोगे, राइट? उसके बाद दीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स राइट्स एंड ड्यूटीज टू द रेजिडेंट, राइट? इंडियन सिटीजन्स को कौन से राइट्स मिलेंगे, इंडियन सिटीजन्स को कौन से ड्यूटीज फॉलो करने चाहिए, ये सब क्या कौन बताता है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन से है बेटा, राइट? तो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ गया, इतना काफी है. नाउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से पहले थोड़ा सा समझ लो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, राइट? किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सीए कहते हैं, इसको शॉर्ट में. सीए का फॉर्मेशन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हुआ था. कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हुआ था 1946 में. ये एक्ट आया, ये मतलब प्लान था ब्रिटिशर्स के द्वारा. नाउ ये जो आपके टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस में भी पूछ लेते हैं कभी कभार, राइट? बट इट विल बी कवर्ड अंडर योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया किस प्लान के अंदर गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनाया गया था. तो जो भी डिटेल है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या कैबिनेट मिशन प्लान का, ये हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे, राइट? तो पैनिक नहीं होने का. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. Objective resolution reflects the philosophy which the makers of the constitution tried to incorporate in the Indian constitution. Indian constitution में कौन सी philosophy होगी, कौन से ideals होंगे, right? ये बताया गया था objective resolution के द्वारा. This objective resolution was passed by Pandit Nehru in December 1946. To be precise, is 13 December 1946. And this objective resolution was adopted on 22nd Jan 1947. Now, the main points of the objective resolution are: first, India to be a democratic plus sovereign plus republic, right? Second point, India will have a federal form of government, right? Next, Indian constitution will provide freedom of thought, expression, belief, faith and worship. Next, Indian constitution will provide safeguard to minorities, right? Then Indian constitution will try to attain rightful and honored place, and will promote world peace. ठीक है, तो समझ गए बेटा, राइट? ये जो मेन पॉइंट है ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के, दो यूपीएससी डू नॉट आस्क नाउअडेज, बट फिर भी आप देख लेना. एक ध्यान में नोट में ये बात रखना, वी हैव नॉट मेंशन्ड द वर्ड सेकुलर, राइट? वर्ड सेकुलरिज्म वाज नॉट इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किससे मिलता जुलता है? जो प्रियम्बल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उससे मिलता जुलता है, राइट? Indian preamble is based on the objective resolution. This was passed by whom? Nehru on 13 December 1946. It reflects ideologies and philosophies. What are the important points? Democratic,
सोवरेन रिपब्लिक बनाएंगे इंडिया को, फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे किसका, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का. एट द सेम टाइम माइनॉरिटीज विल बी प्रोटेक्टेड. India will obtain her rightful and honored place on the international arena. At the same time, we will promote world peace. देखो ये सारी बातें आप याद कर सकते हो ना, जैसे याद कर सकते हो इन द सेंस, एंड आप इसको यूज भी कर सकते हो, राइट. जैसे इंडिया जो है वो वर्ल्ड पीस को कब से प्रमोट कर रहा है, बिफोर इंडिपेंडेंस. बिफोर इंडिपेंडेंस कैसे सर, ये जो है अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको 1946 में पास किया गया था, एंड इट हैज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, राइट. तो देखो मेंस में यू नीड टू हैव नॉलेज लिमिटेड नॉलेज, बट एप्लीकेशन आना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, राइट. तो इन द होल ऑफ द सीरीज वी विल ट्राई टू इनहांस योर एप्लीकेशन लेवल. नॉलेज तो मोर और लेस वीडियो लेक्चर से मिल जाएगा आपको, बट एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट ना. वी विल ट्राई टू इनहांस योर एप्लीकेशन लेवल, राइट. कि आप पॉलिटी की चीज को ऐसे में कैसे यूज कर सकते हो, आप पॉलिटी की चीज को आंसर राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हो, राइट. ये सारी चीजें हम आपको सिखाते चलेंगे. आई एम ट्राइंग टू बी बाईलिंगुअल जितना हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश. एट द सेम टाइम कोशिश ये होगी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, ठीक है. कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. मैं ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट. मैं ईमेल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे मुझे मेल कर देना और प्लीज बताना ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, वेदर यू आर सपोर्टिंग दिस. और अब अगर आप सही में इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप इसको शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बट शेयर करना इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट. शेयर करना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक. वी सीरियसली वांट कि आपके जीएस के प्रिपरेशन में कोई भी पैसा नहीं लगे. देखो अब थोड़ा सा ये मैं हट के बता रहा हूँ, डिस्कशन हो गई तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आंसर राइटिंग एंड दूसरी आपकी ऑप्शनल, राइट. तो हम कोशिश ये करेंगे ना बेटा कि आपका जीएस का जो कंप्लीट सिलेबस है इस चैनल पे एकदम सिंक्रोनाइज्ड मैनर में मेंस के ओरिएंटेड निपटा दिया जाए. ये दो चीज आपको करना होगा, आंसर राइटिंग और ऑप्शनल. आंसर राइटिंग में हम कुछ बच्चों को, हार्डली 40 हमारी कैपेसिटी है, 40 स्टूडेंट्स को हम मेंटर कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा हमारी अभी कैपेबिलिटी नहीं है. एंड वी आर नॉट हियर टू मेक फॉल्स प्रोमिसेस, राइट. एक और बात जो आपके मन में आएगी, टू रिवील द फैकल्टी लिस्ट. जिस दिन 1 पॉइंट कितना कितना बोल दो, चलो जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर आ जाएंगे, ईच एंड एवरी फैकल्टी मेंबर आपके साथ वीडियो इंटरेक्शन करेगा. टिल देन वी विल बी बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस, नहीं वेल ऑफ एरोगेंस भी नहीं, वेल ऑफ नॉलेज कह लेते हैं, राइट. ठीक है. तो ये दो चीजें याद रखना, आंसर राइटिंग और ऑप्शनल. वी प्रॉमिस यू ऑफ मेंस का कंप्लीट कंटेंट, ठीक है. खैर ये तो थोड़ी सी हो गई ज्ञानबाजी, अब चलते हैं कंटेंट की तरफ. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिवाइडेड on many parameters. For example, we can have a written constitution, then we can have unwritten constitution, we can have federal constitution, then we can have unitary constitution, we can have a parliamentary system, or we can have presidential system, right. So type of constitution will vary depending upon the parameters. So we are first trying to understand what is a written constitution, and then we will compare it with unwritten constitution. Now written constitution is simply a single legal book, single legal document, right. Countries like India, Sri Lanka, US do have written constitution. At the same time, these written constitution are actually enacted constitution. Why they are enacted? Enacted because
These constitution has been created by a body, constituent assembly in case of India, right? And they have been enforced on a particular date, on particular date. That's why we call it an enacted constitution. In case of India, Indian constitution has been enforced कब से 26 जनवरी 1950. Written constitution, in case of written constitution, it is the constitution that is supreme. Constitution is supreme. Neither parliament nor judiciary nor executive is supreme. It is the constitution that is supreme. Then, though constitution is supreme, but judiciary enjoys greater power, because it is the judiciary that has power to interpret constitution. कहने का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब रिटन होता है ना, तो नीदर जुडिशियरी सुप्रीम, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही लेजिस्लेचर सुप्रीम. क्या होता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है. बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी दी रखी है जुडिशियरी को. तो इन सच ए सिनेरियो जुडिशियरी एंजॉय अ ग्रेटर पावर. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में वी कैन हैव यूनिटरी और अ federal government. And last point, written constitution may be rigid in case of US or flexible. There are certain provision in Indian constitution that are flexible also, right? ठीक है. But Indian constitution is neither rigid nor flexible. It is a mixture of both. Indian constitution is the mixture of both rigid and flexible, but there are certain provisions that are flexible in nature also. This was all about written constitution. थोड़ा सा समराइज करते हैं चीजों को. देखो written constitution क्या है सर? written constitution कुछ नहीं है, सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट है, राइट? कंट्रीज एग्जांपल इंडिया है सर, श्रीलंका है, यूएस है. ये इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है सर? यहाँ पे सर सुप्रीम है, बट ग्रेटर पावर कौन एंजॉय करता है? जुडिशियरी करती है. यूनिटरी गवर्नमेंट भी हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकता है सर, रिजिड भी हो सकता है, फेडरल भी हो सकता है. दिस इज ऑल अबाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट्स कंपेयर इट विथ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लॉज आर कंबाइंड to form constitution. For example, British Constitution. Let the first law was passed in 1600. Then this law kept on passed by Parliament, and in 2021 a law has been passed. All this series of laws act as constitution, right? It means it is not codified in single document. All law that are made by the parliament forms the part of constitution. They are not enacted constitution, but evolved one. Means unwritten constitution कैसा है सर? ये तो evolved हुआ है ना. evolved in the sense because first law has been passed in 1600, then the last law has been passed into 2021. It means 400 years के आसपास this constitution has been evolved. That's why unwritten constitution are evolved constitution. Now in case of unwritten constitution, parliament enjoy greater power. Why? Because it is the parliament that makes laws. Judiciary has limited power. Why? Again sir, parliament has the law making power, so it can enhance or decrease the power of judiciary. Now unwritten constitution, in case of unwritten constitution, generally
Generally, we have unitary government, right? And unwritten constitution are mostly flexible in nature. दो वर्ड बहुत बार आ रहा है, एक तो यूनिटरी एंड फेडरल, सॉरी यूनिटरी और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का ये मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड इजिली, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड इजिली। यूनिटरी का मतलब होता है कि देयर विल बी ओनली वन गवर्नमेंट एट सेंटर लेवल, एट सेंटर लेवल। मतलब स्टेट लेवल पे कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, ना योगी सरकार होगा, ना ममता दीदी का सरकार होगा, राइट, ना ही आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, केवल एक ही गवर्नमेंट होगी। कहाँ पे? सेंटर पे। ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट। और इसका उल्टा क्या होता है? यूनिटरी का उल्टा होता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? जहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाता है दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। पहला होता है तुम्हारा सेंट्रल लेवल पे और दूसरा होता है तुम्हारा स्टेट लेवल पे, राइट। जैसे देयर आर सर्टेन टॉपिक on which center can form law, whereas there are certain subject where state government और स्टेट लेजिस्लेचर कैन फॉर्म लॉ। ठीक है, मैंने बता दिया आपको ये बात कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये एक मिक्सचर है किसका? फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। मीन्स देयर आर सर्टेन फीचर्स that makes Indian constitution rigid. At the same time, there are certain provisions that makes Indian constitution कैसा? Flexible. थोड़ी और डिटेल में, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 169। ठीक है, आर्टिकल 169 आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आपका एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंजेस इन द न्यू स्टेट, चेंजेस इन द स्टेट से रिलेटेड है, राइट। तो ये आर्टिकल्स अपन डिस्कस करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, सॉरी यार वो इरोड हो गया। मैं कहना ये चाहता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सर्टेन पार्ट है जो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कौन कौन से आर्टिकल मैंने बोला? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 169। ये सारे आर्टिकल रिपीट होंगे, राइट। I've already explained you the meaning of federal constitution, unitary constitution, flexible constitution and rigid constitution. Now coming to the next topic, we will compare parliamentary system with respect to presidential system. इसके पहले there are three organ of the government, three organ of government. These three organs are legislature, executive and judiciary. Function of legislature is to make laws, right? And executive क्या करती है? सर execute these laws. Judiciary क्या करती है? Judiciary interprets these laws, right? ये तीन organ of government है, रट लो। We have parliament, then we have council of minister, then we have Supreme Court and High Court. Parliament is a law making body, hence it is Indian legislature. Then we have a council of minister headed by prime minister और chief minister. तो ये अपनी executive body है, इनका काम क्या? लॉ को execute कराना. Then we have courts that interprets the laws, right? ये है अपना three organ of the government. Now coming to parliamentary system. पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्ट क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, इट इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव मैंने आपको क्या बोला? एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये मेंबर होते हैं किसके? लेजिस्लेचर के। मीन्स इंडियन मिनिस्टर्स, इंडियन कैबिनेट की जो मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मेंबर होते हैं किसके? पार्लियामेंट के।
For example, Modi ji is Prime Minister of the country. At the same time is also a member of parliament from legislature. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ये लेजिस्लेचर है और इसमें छोटा सा पार्ट जो है एग्जीक्यूटिव का, ये सब पार्ट होता है किसका, इस बड़े वाले स्फीयर का. मीन्स एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. रट लो कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. राइट, ठीक है, क्लियर है. और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक और याद रख लो, मैंने बता दिया ना, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. सेकंड ये होता है वी हैव टू हेड्स इन द सेंस कि एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दूसरा होता है हेड ऑफ स्टेट. हेड ऑफ स्टेट जो है वो कौन है, प्रेसिडेंट है. हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, सर, प्राइम मिनिस्टर है. राइट. तो ये जो गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर, राइट, ये रियल एग्जीक्यूटिव है, राइट. वेयर प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. ये सारी चीजें एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, बट हाँ फिर भी समझ लो, ठीक है. ये बस याद रखना कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज बेबी ऑफ लेजिस्लेचर. राइट. उसके बाद मिनिस्टर्स मैंने बता दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. एंड इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ना, तो दे हैव टू गेट मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ. याद कर लो. राइट. विद इन 6 months a member of council of minister must गेट मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर. अदरवाइज उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टरशिप है वो चली जाएगी, मतलब उसकी जो मिनिस्टरशिप है वो चली जाएगी. राइट. बियॉन्ड 6 months नो पर्सन कैन बी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर. दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ना. मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. चलो लास्ट बात याद रखना कि दिस एग्जीक्यूटिव is baby of legislature. That's why executive is responsible to Lok Sabha, that is the lower house. ठीक है. जो पार्लियामेंट होता है उसमें 2 हाउस होते हैं ना, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है. तो लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं. तो जो ये एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर. ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके, लोअर हाउस के, यानी लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होगा. रिस्पॉन्सिबल होने का ये मतलब कि जिस दिन लोकसभा फील दैट वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस एग्जीक्यूटिव मस्ट रिजाइन. व्हाई? बिकॉज दिस एग्जीक्यूटिव इज बेबी ऑफ लेजिस्लेचर. दिस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. This is all about parliamentary system. Now coming to presidential system. Presidential system, there is complete separation of power. We have legislature, we have executive, we have judiciary. All these 3 organs are independent. Here president is both head of state plus head of government. Unlike the parliamentary system where the president was head of the state, whereas prime minister was head of the government. Right. Third याद रखो, executive is not member of legislature unlike parliamentary system. जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में क्या है, रिस्पॉन्सिबल है या पार्ट है किसका, लेजिस्लेचर का. बट दिस डज नॉट हैपन इन पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम. राइट. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो होता है, मिनिस्टर्स आर मींस एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. एट द सेम टाइम इम्पीचमेंट प्रोसेस इज वेरी हार्श. इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट is very hard in case of
इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आपको याद होगा यूएस प्रेसिडेंट को चाहते हुए भी इम्पीच नहीं किया जा सका। भाई क्योंकि प्रोसीजर बहुत हार्ड है। ठीक है, तो दोनों फीचर जानने के बाद थोड़ा सा इस बॉक्स में एनालाइज करते हैं दो बातें। पहला, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा कहाँ होगी, प्रेसिडेंशियल में या प्राइम मिनिस्टर में? तो जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो प्रेसिडेंशियल में कम होगी, पार्लियामेंट्री में ज्यादा होगी। रीजन बीइंग एग्जीक्यूटिव इज बेबी ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का। तो अकाउंटेबल कहाँ होगा, पार्लियामेंट्री विल बी मोर अकाउंटेबल इन कंपैरिजन विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो presidential system is more stable as compared to parliamentary system. Why? Because Lok Sabha, that is the lower house, will always test the majority of executive. Means executive को हमेशा प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव को हमेशा प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव को हमेशा पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करते रहना पड़ेगा। दैट्स वाई स्टेबिलिटी कहाँ कम होती है, पार्लियामेंट्री में, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ ज्यादा होती है, पार्लियामेंट्री में। इस नोट के साथ आज का लेक्चर समाप्त। बहुत ही बेसिक था। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा कल, वी विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, और फिर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडिया की यूके के साथ कंपेयर करेंगे। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, जैसे पार्लियामेंट्री सुवर्जिनिटी की, जुडिशियल सुपरमेसी की। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि नहीं है, ये पढ़ेंगे हम लोग कब, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इस वाले टॉपिक में हमने जो जो पढ़ा वो देख लो एक बार। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन को पढ़ा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझा, फिर फंक्शन देखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, फिर पॉइंट्स देखे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझा, फिर हमने क्या किया, कंपैरिजन किया पार्लियामेंट्री का किसके साथ, प्रेसिडेंशियल के साथ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। और भी अगर कोई फ्रेंड प्रिपेयर कर देंगे तो बता देना कि राजू श्याम देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, फ्री में कोर्सेज चल रही हैं, कर लो। यार मैं फिर से बोल दूं, कोविड ने इम्पैक्ट किया है सबको। बहुत सारे बच्चे थे, राइट, जो चाह के भी फी नहीं दे पाते थे, तो ये हमारे तरफ से एक एफर्ट है आप सबके लिए। चलो लो कॉस्ट में एटलीस्ट तो जीएस तो हम आपकी फ्री में कवर करा देंगे, पूरी की पूरी 4 जो जीएस पेपर है। सभी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी है कि चलो कोविड से भले उनकी फैमिली इम्पैक्ट हुई है, बट हाँ हम जैसे लोग हैं जो आपकी मदद के लिए हमेशा रेडी हैं, राइट। इस नोट के साथ मैं बोलता हूँ चलो, थैंक यू आप सबको, थैंक यू टू ऑल। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट मी एट कुमार आशीर्वाद 6@gmail.com, राइट। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। कोई सजेशन भी बेटा अगर है तो प्लीज़ आप हमें दो, ठीक है। हम लोग एक जनरेशन पीछे हैं आपसे, रीज़न बीइंग ये फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम है कि वी आर यूजिंग नोटबुक और ये लैपटॉप वगैरह बातें, बाकी वी यूज टू बी ट्रेडिशनल एडुकेटर्स। तो ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। हेल्प अस टू ग्रो एंड प्लीज शेयर इट with your friends. Thank you all. Thank you.